मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ. एक मूवी आई थी 2016 में, फैन, शाहरुख खान की. उसका जब थिएट्रिकल ट्रेलर आया तो उसमें एक जबरा फैन गाना डाला गया. ओके. वो गाना मूवी में नहीं. तो किसी ने एक्चुअली एक केस डाल दिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से लड़ा गया. वहां से शुरू हुई उस लड़ाई की, लीगल बैटल की, और वो ऊपर तक आया सुप्रीम कोर्ट तक. अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट से सेटल हुआ. और 2 दफा इस केस को लड़ने के दौरान उसमें ऑर्डर्स हुए कोर्ट से कि हाँ भाई एक मिसलीडिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी कि ट्रेलर में गाना दिखा के मूवी में नहीं दिखाया. पर आप रेड बुल का केस देखो तो बिल्कुल अलग तरह की चीज मिलती है आपको. रेड बुल में था कि गिव्स यू विंग्स. तो क्या केस था ये? में भी ऐसा ही था कि वो बोलता था कि विंग्स देता है ये, और किसी ने उसको पिया और बोला कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं फील हुआ, एथलेटिक भी फील नहीं हुआ और विंग्स तो आई नहीं. Welcome to the Corner Office, your go-to podcast where we learn about the world of business, leadership, and success strategies. I am Sanchit Vijay from Corporate Professionals, and today we'll be talking about influence and counsel, the legal side of the influence culture. Every morning we wake up and we open our social media app and find certain relatable content where we laugh upon or critically think about what we're seeing. It has certain legal aspects to it. We are here to talk about how the industry of social media is a part of our daily routine. We will talk about how it functions, the issues that arise, and how influencers can safeguard themselves from legal disputes that come their way or even in their day-to-day commercial life. This podcast is going to serve as a guide to influencers and to be budding influencers from the lens of another. Today we have with us Mr. Ravi Prakash, who is an associate partner and heads the corporate litigation securities law division at Corporate Professionals. Hi Ravi, welcome to the Corner Office. All right, Sanchit, thanks for having me here. So today we're going to be talking about influencers and their influence on our daily lives. Who are they? What do they do? How do they become popular? So our first segment, we would like to talk about exactly how did this influencer as a profession really came up, and how did they become popular, and when did they become popular? So this phenomena has come to the fore very recently. It is, I think, our generation or maybe Gen Zs, those who can be described as that, they are experiencing this. But this is due to the media and not due to the very nature of act itself. This has existed. I would say that this has pre-existed us. Okay. ये हमेशा से ही था. अब आप let's take a very basic example. कोका कोला की एड रन करी थी उन्होंने, वो सांता क्लॉज के थ्रू करी. सो दे पोर्ट्रेट सांता क्लॉज एज द जॉली ग्रैंडफादर, जिसके थ्रू उन्होंने अपना प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया. अब वो लोग अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे. सांता क्लॉज वाज नॉट टेलिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, और कंटेंट लोगों को पता भी था क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले भी था. बट वो एक्सपीरियंस, वो इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी वो उस कैरेक्टर से निकली जो कि शायद प्रोडक्ट को भी सरपास करती है और जिससे सब लोग रेजोनेट कर सकते. सो ये फैक्टर हमेशा से यहाँ पे रहा है. एक ये भी अलग बात है, हमारे ह्यूमंस को जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे स्पीशीज से जो को एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ, कि हम उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो बाकी एनिमल नहीं सोच सकते. तो वो बाउंड है अपने इकोसिस्टम से, और हम अपना इकोसिस्टम चेंज करने की कुव्वत रखते हैं. So that is the key difference. So ये इंटरनेट का आना, लोगों में इंफॉर्मेशन की, this is the digital age, this is the age of information. तो लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, accessible है चीजें. So it was perfect time for this recipe to really come to the fore. Because I see there are all kinds of influencers. Tech influencers, fashion influencers, influencers, travel influencers, or कितनी अलग अलग टाइप की. I have seen people coming up influencers as lawyers as well. Yes. Simple law की language को explain करते हैं. Correct. Everyday lawyers and all of that. Correct. ये सब चीजें आने काफी ज्यादा लग गई. बिल्कुल, because I feel that this social media, and again now this is about platform. Earlier we discussed about कि उस act का nature अपने आप में क्या है. So that is very innate to every human. But
जो ये प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी है, ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि दिस इज मार्केट ऑफ मार्केट्स. यू जस्ट टोल्ड मी ट्रैवलर्स भी हैं यहाँ पे, जो हेल्थ ब्लॉगिंग करते हैं वो भी हैं, लॉयर्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं. अब एक नई ब्रीड भी है इनके अंदर जिनको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोला जा रहा है, विच आर इन्फ्लुएंसर्स. तो ये तो है ही, और दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटी इन द upcoming times, because as per a global report, the market is going to sell up to 419 billion, and the Indian market, and it is growing at 14.8 CAGR. And I see that these influencers are earning money, having that kind of fame as equivalent to as a Bollywood actor, so to say. And कुछ Bollywood actors से भी ज़्यादा. Correct. I mean, कुछ comedians जैसे भुवन बाम हो गया, वीर वाइशप्स में रणबीर अलावादिया, then mostly same. All of these influencers are like they've gotten to acting and earning money and getting all that kind of fame. So kahin na kahin, now the main crux of this conversation is that ये जो influencers आ रहे हैं and giving advices, suggestions, basically influencing all the people who are consuming whatever knowledge or whatever information that they are passing on through these platforms. Yes. इसका कोई तो repercussion होगा. Right. So I'll come to this in a compartmentalized way. पहले अपन ने बात करी कि ये celebrities, they are akin to celebrities, or they are the new age celebrities. Yes, they are. और इसके पीछे ना एक psychological concept है जो शुरुआत से ही काम कर रहा है, जो कि यूजुअली लेस स्टडीड है. प्रोफेशनल्स ने तो काफी स्टडी किया है, बट जनरल पब्लिक इसको नहीं जानती. बट वी ऑल नो दैट हाउ दिस अफेक्ट्स. और अभी जब हम बात करेंगे तो आई थिंक people who will listen to this or watch this, they will also relate to it. There is something called parasocial relationship. It's a phenomenon of psychology in which you tend to associate yourself with personalities. वो आपको नहीं जानते, आप उन्हें जानते हो, उन्हें नहीं पता कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो, आप उनसे इन्फ्लुएंस हो, पर आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो. अब इसमें ये कोई चांस की बात नहीं है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो. वो डेलिबरेटली कंटेंट ऐसा बना रहे हैं, उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, और फिर अब तो एल्गोरिथम्स की बात है. सो दिस इज ऑल juxtaposition of lot of factors जिनको अगेन जिनको मैनिपुलेट किया गया है, नॉट इन द बैड सेंस, बट मैनिपुलेशन, it is the most important. They're influencing. So this is the most important tool to be able to exercise a choice. If there are three most important things in the hands of human, is this: one is choice, second is manifestation, third is to be able to reason out, and fourth is to be able to influence or persuade others with your ideas. एक बहुत फेमस ऑथर हैं जिन्होंने Sapiens किताब लिखी, उन्होंने बोला if you ask a monkey for a banana for the sake of heaven, he's not going to give it to you. But if you ask human, they will probably. Probably that's how manifestation actually is the key. Yes. So far as you asked about how and what kind of impact, the legal impact will be there on these influencers and what they can do about it, and how the legal help or having a lawyer, consulting a lawyer comes into picture, or should that be a consideration. Let me start with this thing that, as we talked earlier, this is the market of markets. Now, I don't know whether this in all probability defines it to the best extent, but what I want to say by this is that everything that is happening, it has to reach to some consumer. It has to reach to some consumer, maybe not for price, but for some value. And if time is most valuable thing, then whatever you consume by putting your time, you're exchanging a value for it. So, और क्योंकि वो लोग जो आज की डेट में रेलेवेंट है चीज, जैसे कोई ट्रैवल करता है, कोई हेल्थ के ऊपर बना रहा है, कोई फूड के ऊपर बना रहा है. मैंने एक्चुअली एक चीज पढ़ी थी कहीं पे कि if you don't get a product or a service in return, in that means that you are the product. Yes. And I think probably social media ke andar we are not getting anything in return. Yes. So for them we are actually the product. Yes. That quite interesting thing. Yes. That Okay, so as an influencer, like if
I am an influencer, or probably I'm a new age user who's trying to become a content creator, or probably in whichever field that I would want to. I require certain support, assistance, probably legal support, or any kind of assistance to run my business. Correct. So, what are the things, being a lawyer, that you think that I may be requiring by being an influencer in whichever field, obviously? So it will depend on the nature of work you're doing. Those could be many and can't be covered in one conversation. So अगर मैं इसको ऐसे लिमिट करने, so as a influencer मेरा business model बहुत limited है कि मैं जो भी content बनाऊंगा, I will have to earn money through views, probably sponsorships, because मैं किसी भी brand की promotion करूंगा, because एक source तो वो हो गया, एक source brand के through हो गया, तीसरा हो जाएगा कोई product की मैं अगर marketing करूंगा, advertisement करूंगा, which I am using within my content. So ये 3 sources है, I think as a content creator जो पैसा कमा सकता है इन सब जगहों से. So as a lawyer or as a legal consultant, what do you think मेरे को कहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो जो आप कंटेंट बना रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, उसी चीज को टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या उसमें कोई बस से इलीगैलिटी तो नहीं, और वो चीज कितनी रेगुलेटेड है. बिकॉज अभी गेम बहुत नुआंस है. लोग बायोटेक्नोलॉजी में इन्फ्लुएंसर्स है, हेल्थ में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं. आजकल फूड फार्मर भी है. फार्मर भी, दैट इज आल्सो देयर, बट दैट्स मोर रेवोल्यूशनरी. ही इज नॉट एंडोर्सिंग समथिंग, ही इज or maybe he is endorsing public health. He is endorsing that how sensitive and cautious a consumer should be. पर जहां तक मार्केट ऑफ मार्केट्स होने की बात है, वहां पे it is a deliberate exercise. It's an industry. And when it is an industry, one of the meaning of industry is hard work in dictionary. So if something could be called industry, we have to view it as that it has been found through hard work, through someone's vision or a shared vision. तो ये जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन लोगों को पता है कि उसकी प्लेसमेंट करनी है, और पाम टॉप पे एक ही चीज है सबके, it is mobile. No other device has gained the advantage of having in the pockets. I mean, to be in the pockets of carrying everywhere. Mobile phone is, and these social media portals are also 24/7 available to us. तो वो प्लेसमेंट का एक मीडियम है, और जो कंटेंट है वो उसका कैरियर है. तो उस कंटेंट को, ऑफ कोर्स वो बाइट साइज कंटेंट है, अब आपको थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा चीज बता देते हैं, जार्गन फ्री चीजें बता देते हैं. बट इसमें होता क्या है, जैसे ही आप टाइम को कम करते जाते हो और अपना कंटेंट बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करते हो, तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर सरफेस लेवल आपका कंटेंट भी सरफेस लेवल होता है, क्योंकि वो इजीली कंज्यूमेबल होना चाहिए. लिमिटेड नॉलेज होती है. तो कई बार वहां पे इश्यूज अराइज हो सकते हैं, बट इसके लिए भी गाइडलाइंस आ गई हैं. एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं. These are enforceable. ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सबके ऊपर, irrespective of the form of advertisement. And then again, there is an authority, it's called CCPA, जिनकी गाइडलाइंस हैं for prevention of misleading advertisements or endorsements that may lead to misleading advertisements. So when you say advertisement, are you trying to say the advertising जो ये बड़ी-बड़ी companies बनाती है या जो influencers बनाते हैं? Because इतने सारे influencers हैं, how will the advertising media agency would keep a check on these guidelines? दोनों. अब उनको देखने वाली बात यही है कि अब रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं, एक तो उनके लेवल पे एनफोर्समेंट होता था, बट आप भी तो कम से कम, अगर आपके 10 मिलियन व्यूज हैं, तो आपको हर आदमी देख रहा है. एक एक्टिविस्ट भी आपको देख रहा है, एक गलिबल कंज्यूमर आपको देख रहा है, एक एजुकेशनल लेवल पे उतना ज्यादा इंडिपेंडेंट और प्रोफाउंड आदमी भी नहीं देख रहा है, और हो सकता है कि कोई बहुत ही एजुकेटेड और उस फील्ड का एक्सपर्ट आपको सुन रहा हो, देख रहा हो. तो यू आर ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज, एंड there is a portal called Gamma, which is especially made for grievance redressal of for misleading advertisement. तो वहाँ पे complaints हो जाती हैं, और भी ऐसे repositories हैं, ऐसे procedures हैं जहाँ पे complaint raise की जा सकती है. CDRC फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी है जिसमें
जहां पर कंप्लेंट्स फाइल हो जाती हैं. एंड वी हैव सीन दैट मेनी पीपल हैव गॉट कॉट एज वेल. देयर वाज अ केस फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट जिसके अंदर मैरिको का पैराशूट ऑयल, उसके बारे में किसी ने वीडियो बनाई. एंड दैट वीडियो tried to, and this was the finding of the court, that the video was trying to demean the product. So, influence, I mean, this is what, as you said rightly, good or bad दोनों चीजों के लिए हो सकता है. किसी अच्छी चीज को खराब बताना, किसी खराब चीज को अच्छा बताना, ये दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकता है. और कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में लोगों को बताना, that is also a danger. So, as an influencer, मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब in my daily life में? तो एक तो आपको, जब आप कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हो किसी भी चीज को प्रमोट करने का या स्पॉन्सर करने का या उसकी मार्केटिंग करने का, तो आप उसके बारे में अपनी ड्यू डिलिजेंस करें. एंड दैट ड्यू डिलिजेंस, फॉर दैट ड्यू डिलिजेंस यू शुड टेक, जो बेसिकली मैं कंटेंट बता रहा हूँ, जो आप कंटेंट बता रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक है आपका आर्टिस्टिक एलिमेंट जो आपका अपना है. बट अगर आप कोई भी चीज बोल रहे हो, it will be either relating to some concept or some product, tangible or what you're trying to say is fact check. Fact check, yes. Whatever you're trying to influence people about, तो Yes. उसकी fact checking होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. So fact checking could छोटे influencers अपने level पे करते होंगे. As you grow big, Yes. probably you would require that fact checking at some other level. Yes. What else? दूसरा, आप जिन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर रहे हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े मल्टीफेरियस नेचर के हैं. इसमें क्योंकि मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आपसे कोई प्रमोशन कराने आ रहा है, फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स के साथ, और अब क्योंकि एल्गो भी इसके अंदर है, एल्गोरिदम का ही पूरा गेम बताते हैं आप लोग. तो एक्चुअली जो कॉम्पिटिटिव लोग हैं इस फील्ड के अंदर, वो लोग अपने कंटेंट को सिर्फ अच्छा बना नहीं रहे. वो तो एक तो दैट इज द मस्ट दैट दे विल हैव, बट उसकी प्लेसमेंट कब करनी है, किस टाइम पे करनी है, कितना हाइप क्रिएट करना है, दैट इज ऑल दे आर डिसाइडिंग बाय द एल्गोरिथम्स. सो देयर आर कंपनीज व्हिच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देम in which they would help them in placing their content more lucidly so that it reaches to masses. So, those sort of agreements are there, and then thereafter. So contracts and agreements with various brands, various these outsourcing parties or units, wherever, जिससे Yes. भी एक influencer connected है, so that their rights could be safeguarded and protected from. Yes, but अब ये rights भी बहुत तरीके के हैं. कुछ तो rights हैं जो आपको अपने rights protect करने हैं, which means one is that you have to, because you are in the game, you have to keep your liberty intact so that you can remain in the game, which you can't do if you are doing misleading advertisement, or if there is a claim against you that you are doing some advertisement which is illegal. With influencers के लिए, Influencer के लिए हो ही रहा है. they were suggesting not telling which stocks to buy or Yes. telling all of that. Yes. So आप उस गेम से ही बाहर हो जाओगे. So you need to, one aspect of it is that you should know what you should not do clearly. That is one thing to know. Second is that whatever you want to do, and now this is in the commercial realm of it. ये आपको commercials के लिए जो करना है, आपको पता होना चाहिए कि standards क्या हैं. क्या आपके साथ तो कोई predatory tactics नहीं हो रही, क्योंकि मैं एक ब्रांड प्रमोट करता हूँ और मैं नॉन कम्पीट साइन करता हूँ एक्सक्लूसिव फॉर माई लाइफ. दैट इज एन अनकॉन्शनेबल कॉन्ट्रैक्ट. उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, बट लोग साइन कर देते हैं. इनिशियली दीज आर आर्टिस्ट, उनको पता ही नहीं है ये सब चीजें, उस पर फोकस नहीं करते. मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को ये नॉलेज हो, कुछ लोगों को पता भी हो, बट वो चलने दो ना यारों वाली बात. और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता होगा ना कि पहले when they were very I would say new in the industry. Correct. Yes, that is. बड़ी ब्रांड इस बात का फायदा उठा लेती है, अच्छे बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स कर देती है. Yes. That is also one of the reasons. But what multifarious reasons there? I think this industry, because this is an industry. If there are global reports of the growth, their compounded annual growth rate and all, if those are the predictions, then the world is seeing it as an industry, and it is an industry. So it's maybe formalization होगी, and I think we are at the inflection point. Okay. So what are these other areas of legal issues that these influencers could face, probably from the brand side or anything at all? मतलब एक तो बिजनेस के लिए हो गया, तो व्हाट आर दी अदर इश्यूज जो ये लोग फेस कर सकते हैं? See, एक तो ये है कि आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो,
वो ब्रांड खुद किसी की कॉपी कर रहा है। तो जिसकी कॉपी कर रहा है वो आपके पीछे आएगा क्योंकि आप उसे प्रमोट कर रहे हो। तो ये भी एक फैक्ट चेक और डिलीजेंस का पार्ट है। दूसरा, अगर आपका कंटेंट पर से डेफेमेटरी है किसी के लिए या फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं मीट करता, तो ये एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे कैसे पता चलेगा? ये सब यही तो आपका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एक बात है, मगर इन सब चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा ताकि आपका कोई क्लेम मिसलीडिंग तो नहीं हो जाएगा। अगर आप सपोज आप अगर हेल्थ और फूड में काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको वहां के एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इवन अ लॉयर कैन हेल्प इन दैट, बट इफ यू आर रियली इनटू द टेक्निकलिटीज ऑफ इट about the chemical composition of a product, then you should go to that kind of an expert. So, और दूसरा, there are general issues that arise, like आपने किसी का प्रोडक्ट प्रमोट करते टाइम किसी दूसरे के प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर दिया और उसको डिमीन कर दिया, which happened with between two detergent companies of India, जिन्होंने एक दूसरे के प्रोडक्ट्स, और बीच में ऐसा चला था एक आदमी दूसरे का प्रोडक्ट दिखा के अपने को प्रमोट करता था। There were quite a hue and cry on that. तो ये भी एक चीज है। और फिर आप अपने पर इन सब चीजों से ज्यादा जरूरी, और खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एक चीज इसमें से ज्यादा जरूरी है और दूसरी कम जरूरी है। आपको गेम में रहने के लिए अगली प्रोडक्शन तो सबसे पहले देखनी है, पर जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो उसमें आपके साथ कमर्शियल टर्म्स फेयर है कि नहीं है, आप खुद नेगोशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो एक दूसरा एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन है। दैट्स मोर कमर्शियल फॉर द इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज ये लोग आर्टिस्टिक लोग हैं। ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो कि जिन्होंने इसके अंदर करियर ढूंढा, एक अनचार्टेड पाथ पे चलना चाहा। आई थिंक दीस आर ऑल वेरी यंग पीपल, 22 साल के लोग होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग कौन है? ये हैं जिन्होंने अपना पहला पेचेक शायद कहीं लिया नहीं या फिर कहीं काम किया, उनको समझ नहीं आया, उन्हें लगा कि उनके अंदर कोई स्किल सेट है, कैपेबिलिटी है जिसको यूज करेंगे दूसरे वे में और लोगों तक पहुंचेंगे। तो इन लोगों को बहुत ज्यादा नुआंसेस नहीं है। तो मैंने ऐसा देखा है कई बार, दिस इज आउट ऑफ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, कि वो लोग डील तो कर रहे होते हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये इसकी क्या नुआंसेस हो सकते हैं। very simplistically to let the audience know, I am an influencer. Let's say I am a fashion influencer. ठीक है, मैं रेगुलरली रील्स बनाता हूँ कपड़ों को लेके, मेरे व्यूज भी अच्छे खासे। लेट्स से आई हैव 500,000 फॉलोअर्स, 500K on Instagram. I have, let's say, 2 lakh for subscribers on YouTube. मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं फैशन के ऊपर बनाता हूँ, स्किन केयर के ऊपर बनाता हूँ, लग्जरी सेगमेंट के ऊपर मैं कंटेंट बनाता हूँ। नाउ मुझे आपकी क्या जरूरत है? मतलब वो आप मेरी कहाँ सपोर्ट कर सकते हो कि मेरे को आपकी नीड चाहिए, मतलब I should use your services as an expert. तो where all can I use them? देखो, अगर आप सिर्फ अपने शौक के लिए वीडियोस बना रहे हो, आप किसी को प्रमोट नहीं कर रहे, आपके कंटेंट में कोई भी प्रमोशनल एलिमेंट नहीं है, ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट का एलिमेंट नहीं है, और आप सिर्फ एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरह उसको कर रहे हो, then I don't think so you would need a lawyer as much as you would need it when you are doing it for brands or promoting to public. I would rather say, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन कि लेट्स से 500K फॉलोअर है, 2 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज से जो पैसा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट सर्टेन ब्रांड वुड स्टार्ट रीचिंग आउट टू यू, एंड कहीं ना कहीं दे वुड बी ऑफरिंग यू ऑल काइंड्स ऑफ मनी टू प्रमोट देयर रिस्पेक्टिव सर्विस और ब्रांड। आई थिंक कुछ टाइम पहले, डू यू रिमेम्बर, एक इंस्टाग्राम पे मीम चला था that oh my god, wow, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. ये वाला मीम चला था। So what happened? It just went viral. Yes. And that lady used to sell suits. I think उसका West Delhi में पेज पे शोरूम है। तो अब उसकी मीम, मतलब उसकी वीडियो वायरल हो गई, बहुत सारी ब्रांड्स ने उसको रीच आउट किया। Yes. And I'm sure उस जिसने भी रीच आउट किया होगा उन्होंने उसको पैसे दिए होंगे। बिल्कुल। अब before the reel went viral, that meme went viral, she was just another businesswoman selling, doing trading of women garments. But post that, उसने तो कभी ये सब ब्रांड्स के साथ डील नहीं किया, तो उसका तो हमेशा रिटेल के साथ था। तो अब क्या उसकी लाइफ भी चेंज आया। तो जैसे कि जो हमने ये केस की बात करी,
so beautiful, they're sleeping like a wow. That was a meme. पर जो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज अ फोकस्ड इंडस्ट्री. किसी एक आदमी की कोई बोली हुई बात को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, उसको सिमुलेट कर लिया, उसका मिमिक कर लिया, दैट इज अ मीम. वो वाली गेम फिर व्यूज की गेम है, और वो जो प्लेटफॉर्म से पैसे मिलने हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. मैं एक्चुअली अब उस लेडी के लिए बात कर रहा हूं. नाउ फॉर दैट लेडी, व्हाई वुड शी नीड योर फर्स्ट, डज शी नीड योर सर्विस? If she is promoting and if she is getting brands, she is, then definitely. So let's finalize. Okay, she is receiving वो आई थिंक 2-3 एड्स में भी आई है. उसने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रमोशन भी करी है 2-3 एड्स को लेके, इसी चीज के ऊपर. बट ओके, शी नीड्स योर सर्विस बिकॉज शी इज डूइंग. कहाँ पे you can support her or give your expertise? One is whenever she is getting approached by a brand, we can ensure whether the terms are fair or not. In her favor or not, or whether in that arrangement is fair or not. It is not that it should favor her absolutely, of course, but the arrangement should be fair in itself. That is one. So, okay. Second is that whatever arrangement she has to do with other third-party service providers, because this is an industry and there are peripheral players. Influencer और brands के बीच में भी बहुत सारे players हैं जो आपको करते हैं. Like you would have to hire a person who manages your PR, your digital video editing and all. For those, they keep teams. So what they're employing people is many of them are now functioning in private limited companies or LLP, or those who are functioning in unstructured format. When the money keeps coming in, they have to go for a structured format. So that is one, setting up their business in a formal way. Second is ensuring their compliances, both of the statutory nature as well as event-based or based on their actions. So they suppose they are going to promote a brand and they are going to say that this is organic cotton and no animals were harmed during the production of these, or they want to tell characteristics about the fabric, particular fabric, or they are promoting an exclusive brand. तो उसमें diligence उनको करनी पड़ेगी. तो वो एक्सक्लूसिविटी वाला क्लॉज और ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. और फिर तीसरा आता है कि जो उनसे डील कर रहा है, जिस ब्रांड के लिए वो ये प्रमोशन कर रहे हैं, उनके साथ उनके टर्म्स फेयर हैं कि नहीं है. सो एज a lawyer now, I'm sure that you must be getting lots of leads on these things. मुझे कब से, मतलब मेरे आज लेट्स से इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो क्या मैं क्या आज आपकी सर्विसेज एंगेज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं. लॉयर्स एक तो ये बिल्कुल नए टाइप का इंडस्ट्री है, और इसकी नीड्स जो है वो पुरानी, मतलब लॉज नए नहीं है. ये उन्हीं लॉज से इंटरेक्ट कर रहे हैं जो 100 साल से एग्जिस्टेंस में. इट इज रियली स्ट्रेंज कि ये सारे लॉज वही हैं जो पहले से चले आ रहे हो, जिनसे अब आप इंटरेक्ट करना शुरू कर रहे हो. Yes, it is a good idea to be proactive about it. And so far as legal cost is concerned, that is not a cost. The cost is of non-compliance. Penalty आपको पता है, Consumer Protection Act में 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी है. एक misleading advertisement और series of misleading advertisements अगर आपने कर दी, and there is a case is made out against you, you could be blacklisted, you could be thrown out of the market, and there are monetary costs involved. So just think about the legal costs. It's nothing. दूसरा, इतनी सारी compliances हैं. या तो आप बिना compliance के काम करो, और फिर leave it to the fate. So can I safely assume कि let's say 10,000 followers हैं, या फिर you've just started on YouTube, you should be proactive by not engaging you, but you should keep that idea open that as soon as you start growing, there may come a need. So हमने 3 चीजों पे आइडेंटिफाई किया ड्यूरिंग द बिजनेस. आपके कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स जो आप विद योर एम्प्लॉइज करो, विद दूसरे ब्रांड्स करो, आपका अरेंजमेंट एग्रीमेंट जो दूसरे ब्रांड के साथ हो वो फेयर हो, विच प्रोटेक्ट्स योर राइट्स. ठीक है. और तीसरा हमने ये बात की कि जब आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, द मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इन, आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए होगा, सो यू कैन क्रिएट सेट अप अ बिजनेस. सो ये तो हो गई आपकी डे टू डे एक्टिविटीज अपने कमर्शियल बिजनेस को रन करने के लिए एज अ इन्फ्लुएंसर. व्हाट अबाउट एनी डिस्प्यूट्स और एनी लीगल केसेस दैट मे ड्रैग यू इनटू एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? प्रोबेबली आपने अपने एग्रीमेंट को अधेयर नहीं किया,
आपने सोचा कि आपने किया, but these big brands feel like these differences arise. So when you do business. and क्या पता मैंने let's say मैंने किसी ब्रांड के साथ काम किया और मैंने उसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड के साथ भी काम कर लिया, and I didn't adhere to the agreement जो मैंने साइन किया हो, because not having a lawyer or not having that respective expertise मैंने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये टेस्ट करना जरूरी है कि ये आपकी परसेप्शन है कि आपने अडेयर नहीं किया। लेट्स सपोज वो एग्रीमेंट ही इलीगल था ओके तो ये तो सिर्फ एक मॉरल क्वेश्चन हो गया कि मैंने नहीं किया। तो ये टेस्ट करना जरूरी है कि वो नॉन अडेरेंस किस नेचर का है, इंटेंट था कि नहीं था। इंटेंट इज वन थिंग, सेकंड इज कि क्या आपको फोर्स किया गया वो नॉन अडेरेंस के लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज को इम्पिंज करता था कि वो हो ही नहीं सकता था कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर तो कोई नॉन अडेरेंस हुई नहीं। तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये जरूरी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट्स करें तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की ऑब्लिगेशन मैट्रिक्स क्या क्या है, आपको क्या क्या परफॉर्मेंसेस करनी है, आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है उसमें। तो ये बात भी जानना जरूरी है। सो देखो, डिस्प्यूट को अगर मैनेज करना है तो एक चीज तो ये कि डिस्प्यूट हो गया, अब उसे मैनेज करना है। अगेन यू हैव टू गो बैक टू द सेम प्रोसेस कि आपने उस काम को किया कैसे। लेट्स टॉक अबाउट अ सिचुएशन वेयर जो भी आदमी इन्फ्लुएंसर है, whosoever is doing this, irrespective of gender, वो लोग जब काम कर रहे हैं तो वो क्या वर्क प्रोसेस के थ्रू वो काम कर रहे हैं, नॉलेज रिपोजिटरी कितनी अच्छी है उनकी, अगर वो कोई प्रमोशंस कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या सैंपल्स दिए हैं, क्या डिलिजेंस करी है, जो डिस्क्लेमर्स देने होते हैं। अब जैसे एडवर्टाइजिंग काउंसिल की जो गाइडलाइंस हैं और सीसीपीए ने जो अभी जून 2022 में नोटिफाई जो गाइडलाइंस हुई है उनकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, उसमें उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। They have to give declaration of the material connection between them and the brand they are promoting. और अगर material connection नहीं है तो भी उनको declaration देना है। अब अगर material connection है और material connection कमाल की बात है कि ये monetary के अलावा भी कुछ हो सकता है, because इसका keyword है value, not money. It could be any perks, it could be a quid pro quo कि तुम मुझे ऐसे सपोर्ट करो मैं तुम्हें ऐसे सपोर्ट करूंगा, that is also a value। तो वो सब चीजें देख के जो कंप्लाइंस है ना, इसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न अराइज हो रहा है कि लोगों को ये बात पता ही नहीं है, पर ये सब पॉसिबल वायलेशंस हैं लॉ की। मतलब आप अगर फिल्टर आउट करना शुरू करोगे कंटेंट को तो आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे जो कि कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे। अब वो आज तो ना हिट नहीं कर रहा क्योंकि आज उन पे शायद कुछ है नहीं, बट उनका स्किल सेट, उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन स्केलेबल है, रातों रात लोग मशहूर हो जाते हैं। अब जब वो कल मशहूर हो जाएंगे तो उन पे केस डालना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीजों को दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर इफ दे रियली वांट टू डू इट सस्टेनेबली, दे विल हैव टू पुट देयर हाउस इन। आई थिंक ये काफी अच्छा पॉइंट था मुझे इससे रियलाइज होता है कि अगर लेट्स से मेरी एक भी रील या एक भी कंटेंट मेरा वायरल हो गया, मैं रातों रात मशहूर हो गया, एंड I would then become a piece of attraction for everybody. And मेरे हर past action के ऊपर जो शायद मुझे लगा स्कूटी पर जाएगी कि और आप मार्केट शेयर किसका ले रहे हो, एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंसर्स का। तो ये सब आपस में, you know, when it is industry, all sort of things happen. You have competitor within that industry. You are competing with other influencers. तो ये सब यूनिक लाइक करने वाले लोग तो है नहीं। I'm sure all of us must be subscribing to multiple influencers, multiple channel subscribe किए होंगे, multiple type का content देखते होंगे। तो ये जो जेंट्री है ऑडियंस की, इट इज अ कॉमन जेंट्री। ज्यादातर लोग इसमें 18 से 28 या 25 साल के बीच के लोग हैं जो कि जेंजी जिनको बोला जा रहा है। तो अगर आपका कंटेंट ज्यादा फेमस हो रहा है तो लोग कहीं से हटके कहीं ज्यादा देख रहे हैं। दैट इज सिंपली व्हाट इट मीन्स। और जब ऐसा होने लगता है तो लोग पीपल प्ले लॉट ऑफ एंडेवर्स, सब अपना अपना मैन्यूवर करते हैं कि कैसे इसको मैनेज करना है। लीगल केसेस आर फाइल्ड with those। So कोई एग्जांपल ऑफ सच लीगल केसेस जो अगेंस्ट दीज इन्फ्लुएंसर्स हुए हो, या कोई प्रेसिडेंट्स या कोई जो यू मस्ट हैव सीन। एक तो बहुत फेमस है मैरिको वर्सेस अभिजीत भंसाली, ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट। he made a video about parachute oil, जैसे हमने पहले ही बात करी थी, और उसमें उनको जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें पता लग गया that it was motivated, it was made to bring down the reputation of that oil, okay, by the name of parachute, that coconut oil। तो उस वीडियो को हटवाया गया। फिर किसने हटवाया? मैरिको। अच्छा, ओके। The company itself went,
बट कई केसेस में तो ये बंसाली वर engaged by Marico? no, he was not engaged by Marico. He was doing it as an influencer, using the social media platform to make videos about the product, tell about the contents of the product, how it is not what is claimed by the company. But the facts were not correct. But the facts were not correct. At least the court did not find them to be accurate. I think food farmer Rewan यही सेम चीज कर रहा है. Correct. He is doing the same thing, but I think अभी तक और उस पे भी केसेस हुए. और केसेस हुए. जब उसने अभी पीछे बॉर्नवीटा के लिए किया तो भी काफी ट्रबल्स हुए. लेस पेप्सिको के साथ काफी उसको ट्रबल झेलना पड़ा. बट क्योंकि वो अपने फैक्ट्स पे ठीक था और उसने जो बातें बोली वो मतलब कई बार आप कंटेंट बनाते बनाते इतनी एक्साइटिंग मसाला इतना ज्यादा डाल देते हो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इतना ज्यादा डाल देते हो कि वो मिसलीडिंग नेचर ले लेता है. आई थिंक वो उसने कंट्रोल रखा अपना एक्सप्रेशन. सो एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दैट व्हाटएवर फैक्ट्स दैट आई एम गिविंग आउट, इवन इफ दे आर राइट इन इटसेल्फ, इट शुडंट बी मिसलीडिंग or it should not be defamatory नहीं होना चाहिए. करेक्ट. मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ. एक मूवी आई थी 2016 में, फैन, शाहरुख खान की. उसका जब थिएट्रिकल ट्रेलर आया तो उसमें एक जबरा फैन गाना डाला गया. ओके. वो गाना मूवी में नहीं, तो किसी ने एक्चुअली एक केस डाल दिया जो कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम से लड़ा गया. वहां से शुरू हुई उस लड़ाई की, लीगल बैटल की, और वो ऊपर तक आया सुप्रीम कोर्ट तक. अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट से सेटल हुआ और 2 दफा इस केस को लड़ने के दौरान उसमें ऑर्डर्स हुए कोर्ट से कि हाँ भाई एक मिसलीडिंग या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी कि ट्रेलर में गाना दिखा के मूवी में नहीं दिखाया. उसका कंज्यूमर ने ट्रेलर देख के बोला कि मैं मूवी देखने चली गई अपनी फैमिली के साथ, जबरा फैन गाना और जबरा फैन गाना था नहीं. अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रेलर्स यूनिलैटरल होते हैं. ओके. इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. मूवी का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप टिकट खरीदते हैं तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ट्रेलर से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, तो ये नहीं माना जाएगा. और वहां पे उन्होंने एक काफी प्रोग्रेसिव बात डिस्कशन करी. इट्स अ फेयरली रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट आई एम टेलिंग यू, एंड इट इज बाय द नेम ऑफ यशराज फिल्म्स. वन ऑफ द पार्टीज यशराज फिल्म्स इन दैट. ओके. तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को हम ऐसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट जो होती है, यार हर एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती. प्रोडक्ट के बारे में हाइप क्रिएट करती है. कई बार आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस या अनरिलेटेड एक्सपीरियंस की भी बात बताती है. जैसे ड्यू का ऐड देख लो. अब ड्यू पी के कौन पहाड़ कूदने जाता है? डर के आगे जीते. उनका मैसेज है वो. सो कोई आदमी ये बोले कि मैं ड्यू पी के पहाड़ कूदने चला गया तो शायद वो अपने क्लेम में सक्सीड नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. एवरीबॉडी नोज दैट वो ड्यू पहाड़ नहीं कूदवा रहा है. प्रोबेबली ड्यू पी के आपको बेटर फील होगा, पर वो कंपनी गारंटी नहीं कर रही कि बेटर फील होगा कि नहीं होगा. दैट इज जस्ट एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. इट इज अ हाइप अबाउट द प्रोडक्ट. पर आप रेड बुल का केस देखो तो बिल्कुल अलग तरह की चीज मिलती है आपको. रेड बुल में था कि इट गिव्स यू विंग्स. तभी उन्होंने विंग्स का स्पेलिंग चेंज कर दिया. उन्होंने एक और आई ऐड कर दिया. अच्छा, एक और आई ऐड कर विंग्स की. तो क्या केस था ये? फॉर आर भी ऐसा ही था कि वो बोलता था कि विंग्स देता है ये, और किसी ने उसको पिया और बोला कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं फील हुआ, एथलेटिक भी फील नहीं हुआ और विंग्स तो आई नहीं. और केस कर दिया. हाँ, उनको तकरीबन कई $1 मिलियन पे करने पड़े. $12-13 मिलियन. क्लास एक्शन सूट था. क्लास एक्शन सूट था और बहुत सारे कंज्यूमर्स को पे करना पड़ा. अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2019 में थी 7.7 बिलियन. 2019 में रेड बुल की सेल थी 7.5 बिलियन कैंस. मतलब तकरीबन अगर हम 20 मिलियन लोगों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया को पिलाने लायक कैंस वो बना चुके थे और बेच चुके थे. तो ये तो होना ही था. ऑफ कोर्स जब आप इतने पॉपुलर हो जाओगे तो लोग स्क्रूटनाइज करेंगे और ये होगा. ये बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ स्क्रूटनी आल्सो. तो ये तो होने ही वाला है. सो रेड बुल का केस हुआ कि इट गिव्स यू विंग्स, एंड एक्चुअली विंग्स तो नहीं देती, बट इट वाज देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन. पर उनको द कैच इज कि उनको डैमेजेस पे करने पड़े. और उनको नाम भी चेंज करना पड़ा. सो अब रेड बुल के अंदर विंग्स की स्पेलिंग है WII. ऐसा ही. So it's not. और उनका डिफेंस ये है कि इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग थोड़ी ना. दिस इज नॉट द विंग्स व्हिच gives you पंख वाला विंग. ये हमारा एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. सिमिलरली ये जो मैंने आपको मूवी बताई फैन, इसके लिए भी जबरा फैन गाने के लिए भी उन्होंने कोर्ट्स ने यही बोला. So what was the end result? So the end result is सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि भाई ट्रेलर के बेसिस पे हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि जो ट्रेलर दिखा रहे हैं वो
मूवी में ही होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ यूनिलेटरल। Oh. आप मूवी के अंदर बताओ कि क्या मिसलीडिंग चीज है, और उन्होंने क्या प्लीडिंग्स देखी, एविडेंसेस चेक की। सो इट इज, देखो सरफेस लेवल बात पे अगर हम जाएं तो आप जो भी बोलते हो प्रोडक्ट के बारे में वो सब कुछ बाइंडिंग नहीं होता। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से होने वाले एक्सपीरियंस के बारे में, या उस प्रोडक्ट को अगर आप नहीं खरीदोगे, वो सर्विस नहीं अवेल करोगे तो आपको क्या रिस्क हो जाएगा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से बनाने वाली है। बट प्रोडक्ट के लिए जो आप एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन निकालते हो, आपने कोई म्यूरल बना दिया, कोई डिजाइन बना दिया, कोई गाना बजा दिया, उसका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। कोई चीज जो प्रोडक्ट को रिलेट करती हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सिर्फ वो चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का फ्रीडम तो अभी भी है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर क्योंकि ये कमर्शियल स्पीच भी होती है, जब आप आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मिक्स करते हो, उन दोनों का मर्जर करते हो और फिर कोई अपनी बात आगे रखते हो, तो वो कमर्शियल स्पीच में आ जाती है। और अगर वो अनफेयर है, मिसलीडिंग है, तो वो प्रोटेक्शन नहीं होती। तो आपको ये जो ब्लरी लाइन है, इसमें बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट अट्रैक्टिव हो, आपका कंटेंट इजीली कंज्यूमेबल हो, मगर एट द सेम टाइम आप लीगल फ्रेमवर्क से कंप्लाई कर रहे होने चाहिए। और कंप्लाइंसेस, ये तो आई थिंक हमें एक पोल भी करके देखना चाहिए कि कितने लोगों को पता है compliances. I'm sure that the level of knowledge about compliances and the actual implementation of it is very poor, for lack of better words. So I think we have gotten a lot of things on these factors. हमने influencers का advent की बात करी, उनको कहाँ पे expertise की जरूरत पड़ सकती है, कुछ real life examples कि कैसे आप कोई चीज एडवर्टाइजमेंट बनती है, उसको आप किस तरीके से गलत मिसलीड नहीं कर सकते टू देयर कंजम्पशन, जो कंज्यूमर्स के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की भी बात की। सो इट वाज क्वाइट एन एनरिचिंग कन्वर्सेशन रवि, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू कंक्लूड आउट हियर कि हमने क्या क्या चीजें एज अ इन्फ्लुएंसर्स, But Sanjay, we would be only concluding the tip of the iceberg. yes, Because this is a topic and this is ever dynamic. The market is still evolving. ये चीज तो है इसमें कि this is going to be the future and this is going to stay. आप ये सोचो ना, मार्केट का साइज ही डबल होने वाला है 2028 तक। 219 बिलियन डॉलर की मार्केट है 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, and it is going to swell up to 400 something billions by 2027-28. इंडिया की मार्केट जो है वो सिर्फ 2 बिलियन के आसपास है, और इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट ऑफ मार्केट्स फ्रॉम अ जियोपॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इंडिया और 3% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जो ग्लोबल रेट है ग्रोथ का वो 14% है, मोर देन 14%, और इंडिया में इट इज क्लोज टू अबाउट 4%. So you see the potential in the Indian market. These people are going to come. You see the situation of unemployment in the country. And these are all the factors which are propelling people to come up with their own. And these are going to be the startups of tomorrow. These influencers, they are going to make, and there will be a mega influencer farm also, where all these artists will collaborate and do. और हमें तो देखने को मिलेगा आगे चल के कि creativity का next level ऑलरेडी देखने को मिल ऑलरेडी है, पर वो ये और भी ज्यादा होने वाला है. सोचो आपके bunch of favorite influencers, they are collabing together and coming in series. वैसे भी हो ही रहा है, पॉडकास्ट वगैरह भी लोग आ रहे हैं साथ में और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई कैन से. I'm sure that we will continue this conversation in the upcoming podcasts, and we'll talk about all of this. But for today, as an influencer, I should rely upon services of an expert when it comes to any contracts that I'm signing off, any agreements that I'm signing off, whether with my employees or with other sponsors or other brands that I am getting revenue from. And I'm giving out my services to. Yes. और आप जहाँ पे रेवेन्यू, जिनकी सर्विसेज आप ले रहे हो अपने कंटेंट को बनाने के लिए, इट कुड बी और एडिटोरियल टीम, बोथ कंटेंट एज वेल एज डिजिटल, आपके वो लोग जो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो लोग फिर आपके कस्टमर हो गए. एज एन इन्फ्लुएंसर आपके कस्टमर्स दो हैं, एक तो वो मासेस हैं जिनको आप दे रहे हो, आपके फॉलोअर्स, और एक वो लोग जो आपसे प्रमोशंस कराने के लिए आ रहे हैं. उन दोनों के साथ आपको कंज्यूमर्स को आपको पक्की इंफॉर्मेशन देनी है,
सही ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है, और ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स जो है मेन, उनके साथ आपको ये देखना है कि आपका कमर्शियल अरेंजमेंट जो है वो फेयर होना चाहिए, रेम्यूनरेटिव होना चाहिए और ऑनरस नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए उसके अंदर कोई. And structuring the right way. और इसमें तो there is a coin term. So जैसे जैसे ये इकोसिस्टम बढ़ रहा है, regulators and government is also very proactively approaching this. और अभी तो जुडिशरी भी आ गई है इसमें. This entire Patanjali dispute which is going on, उसके अंदर अब बात यहाँ तक चली गई है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए इन सारी कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का. पोर्टल्स बहुत एक्टिवली यूज किए जाने चाहिए जहाँ पे इनकी ट्रैकिंग हो सके इस तरह की कंप्लेंट्स की, because they are saying that it will be a huge catastrophe if it is not regulated or controlled, or if people feel कि वो टेलीविजन पे तो कोई भी ऐड नहीं चला सकते, बट सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल सकते हैं. ये तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है जो कैच कर लिया उन्होंने. गामा, दे आर टॉकिंग अबाउट एक्टिवेटिंग दिस गामा पोर्टल. दे आर टॉकिंग अबाउट हार्ड टू मिस फॉर्मेट्स. दे आर सेइंग कि जिस फॉर्मेट में, जिस फॉन्ट में, जिस साइज में आप प्रमोट कर रहे हो, उसी फॉर्मेट में, उसी फॉन्ट साइज में, उतना ही बड़ा, उतना ही आर्टिस्टिकली आप उसका डिस्क्लेमर भी दोगे. एडवर्टाइजमेंट है कि एडवर्टाइजमेंट. I've seen Instagram पे रील्स में अब लोग लिखने लगे #ad करके कि because of the guidelines, these are statutory guidelines. If you don't follow them, you run the risk of getting thrown out of the business or being saddled with the penalties. तो ये तो आप तो लीगल डिस्प्यूट्स में फंस जाएंगे. लीगल डिस्प्यूट तो एक बात है, ये तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से आपको पकड़ लेंगे, because they you are also being watched by them. और अगर वो नहीं देख रहे तो कोई ना कोई आपको देख रहा है जो वहां भेज देगा. और ये नॉलेज देखो, ये हो सकता है 2, 4, 5 साल लोग ऐसे काम चला लें अपना. मेरे को तो खैर वो भी मुश्किल लगता है, पर जैसे जैसे ये चीजें लोगों को पता लगने लग जाएंगी, जैसे जैसे आप बड़ा भी होने लगते हो ना, आपके इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस बड़ी होने लगती है, आप ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हो. 100%. You come under the scrutiny even more. Yes. And they say that if you are in an influencing position, you are public property. It was a great conversation, Ravi. Thank you for coming to the corner office, and we shall see you again. Sure. It was really enriching, and probably the time in which we are covering it is not enough to talk about all the aspects of it. But yes, the message is very clear, and I think you have succinctly put it before our audiences, that it is better to have a proactive approach. Non-compliance is a clear path to be doomed, and only by managing your work in a structured way, or by seeking help of other experts, that you can do it sustainably. Right. So this concludes our episodes. We have a lot more in store for you. Thank you for joining us. Stay tuned to our space for insights into the corporate world. Like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Let us know in the comment section what you'd want to know more about. Thank you.